जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज से हमने गुरुजी की कृपा से इस चैनल पर गुरुजी की संगत के शुक्राना सत्संग शेयर करना शुरू कर दिया है। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा समर्थन करना संगत जी। गुरुजी के ब्लेसिंग से भरपूर पूरा सत्संग सुनना, आधा मत छोड़ना निवेदन है। नहीं तो जो लोगों ने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है उनकी मेहनत खराब हो जाएगी। और आप सभी सत्संग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना और लाइक करना और कमेंट भी करना। आप सभी गुरुजी की संगत को करना है। और जिसने भी यह सत्संग पूरा सुन लिया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दे टुडे गुरुजी शुक्राना सत्संग कंप्लीटेड। तभी ज्यादा लोग तक यह सत्संग जाएगा और उनकी मदद हो पाएगी। और जो संगत ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे गुरुजी का यह चैनल। इस सत्संग में हमने 3 संगत के शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। कृपया तीनों संगत के सत्संग ध्यान से सुने। और खासकर जो तीसरा सत्संग है उसमें गुरुजी ने जिस तरह मदद की सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की, वह बेहद चौंकाने वाला है। इसलिए इसे अंत तक जरूर सुने। चलिए शुरू करते हैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करना चाहनी है। मैं चंडीगढ़ तो मैं गुरु जी ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ 2024 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੁਲਾਵਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਸਟ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬੰਕ ਮਾਰ ਕੇ 6:15 ਵਜੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਪਾਸ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਲਦੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ 7 ਵਜੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ 40-50 ਸੰਗਤ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਆਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ 40 ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 6:45 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਪੱਕਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि गुरु जी कहते थे कि शुरुआत से शुरू करो, तो मैं अपने छोटी बेटी के इलाज के सिलसिले में दिल्ली गई थी। वो 3 साल की है और उसमें डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट में बहुत डिले है। अभी वो चलती नहीं है, बोलती नहीं है, तो ये सारी समस्या है। तो इसके लिए हम गए थे और अलग-अलग टाइप के टेस्ट करा रहे हैं। अभी तो सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, गुरु जी चाहेंगे तो उसके सारे टेस्ट सही रहेंगे। और यही सब के सिलसिले में हम गए थे। तो हमने कैब जो बुक किया एम्स जाने के लिए, तो बहुत देर तक कैब वाले कोई भी भैया नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे। बाद में एक भैया आए तो उनके जब हम बैठे तो आधे रास्ते को जब हम गए, तो ऐसा हमने महसूस किया कि उनकी गाड़ी में बहुत सारे मतलब वीडियोज़ आ रहे हैं, भजन के आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने कहा कि आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लग रहे हैं। हम लोग बहुत दिनों से आ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई धार्मिक प्रवृत्ति का इतना नहीं मिलता। तो ये किनके भजन सुन रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये गुरुजी हैं। तो मैंने कहा गुरुजी का नाम तो होगा, नाम क्या है इनका? उन्होंने कहा इनका गुरुजी कहते हैं, ये छतरपुर में इनका एक मंदिर है। और मैं अभी 2 बार गया हूँ क्लाइंट को लेके और मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जो भी इच्छा होती है वो पूरी होती है। उनके यहाँ बहुत बड़े-बड़े लोग आते हैं और जो चाय दे देते हैं, जल दे देते हैं और कोई आपके हाथ से कप ले लेगा, खाना-पीना सब कुछ मिलता है। उनका फ़ोटो उस समय पता नहीं था गुरु जी के फ़ोटो को स्वरूप कहते हैं, तो फ़ोटो ये सब भी मिल जाता है। उसके लिए कोई वहाँ पे कोई पैसे या कुछ भी दान दक्षिणा देने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा उन्होंने बताया। फिर हमने कहा कि ठीक है, फिर अगली बार हम भी आएँगे तो बच्ची को दिखाने के सिलसिले में तो हम भी ज़रूर जाएँगे। फिर ऐसा हुआ कि हम लौट आए। मेरे हस्बैंड अंकल जी अलग स्टेट में जॉब करते हैं, मैं एक अलग स्टेट में जॉब करती हूँ। मेरे दोनों बच्चियाँ मेरे साथ ही रहती हैं। तो जब मैं लौट के आई तो मैंने गुरुजी के बारे में ढूँढा, गूगल में सर्च किया, फिर बहुत सारी चीज़ें पता चली, फिर धीरे-धीरे सत्संग आने लगे ऐसा करके। बहुत सारे सत्संग सुनते-सुनते फिर मुझे बहुत मतलब बहुत ये 2 अप्रैल 2024 को सबसे पहले मैं उनके बारे में मिली। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और 20 अप्रैल को मेरे से रहा नहीं गया और फाइनली मैं उनका स्वरूप प्रिंट करा के और वो ले आई, मतलब लैमिनेट करा के। मुझे तब मतलब बाद में पता चल गया था कि उनके स्वरूप खरीदने नहीं चाहिए, लेकिन जब शुरुआत में जब मन की इच्छा हुई तब पता नहीं था। तो ऑनलाइन ही मैंने निकाल के उनका फ़ोटो और फिर स्वरूप को प्रिंट करके घर ले आई। फिर मैंने उनका पूरा स्वागत किया। उसके पहले मैं सत्संग सुनने लगी थी, उनको चाय प्रसाद, जल प्रसाद ये सब मोबाइल में ही सत्संग सुनते-सुनते उस पे ही चढ़ा देती थी, वही ले लेती थी। लेकिन उसके बाद से 20 अप्रैल के बाद से मैं पूरी तरीके से नियम से करने लगी। लोटा जो ब्लेस करना था वो मैंने सत्संग में सुना था कि उसी को मतलब स्वरूप को टच करा के आप लोटा ब्लेस कर सकते हैं। तो वैसा ही मैं करती थी। डायरेक्ट का पानी जो आता था उसको भर के और 7 बार गुरुजी का महामंत्र पढ़ के ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय बोल के मैं स्वरूप के सामने रख देती थी। और फिर मैं क्या 10th से लेके पीएचडी तक पूरे टाइम हॉस्टल में ही रही, तो रोज़ जोत करना ये सब मेरे लिए नहीं पॉसिबल हो पाता था। जॉब को जॉइन करने के बाद भी मैं मतलब ऐसे ससुराल में नहीं रह पाई, जॉब के कारण अकेली ही रहती थी, तो ये सब जोत रोज़ करना, ऐसा करना ये नहीं कर पाती थी। पर जब से मैं गुरुजी को मिली हूँ, मैं रोज़ शाम को जोत जलाती हूँ और सुबह भी पूजा करती हूँ। तो बच्चों को चंदन का टीका गुरुजी को लगा के
और फिर बच्चों को लगाती हूँ तो ये सब है। ये सब मैं करती हूँ। तो मुझे गुरुजी के पे बहुत विश्वास हो गया है और मेरी दिन की शुरुआत से लेके रात का को सोने जाने तक हर टाइम गुरुजी करती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल जी भी थोड़ा विश्वास तो करते हैं, ये सब नियम फ़ॉलो नहीं करते, पर उन्होंने भी अपने घर में फ़ोटो को प्रिंट करके स्वरूप बना के उन्होंने फ्रेमिंग करके लगा दी है। और तो मैं आज अपने हस्बैंड अंकल जी के ही क्योंकि वो ना ही सत्संग सुनते हैं और ना ही सत्संग कैसे शेयर करते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो लेकिन उनके कुछ शुक्राना सत्संग है, मैं उनको भी आपके सामने सारे संगत जी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। हो सकता है कि कुछ लोगों के सवालों के जवाब मिले और गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को, मुझे, हमारे परिवार को और सारे संगत जी जो इस सत्संग को सुनेंगे उनको ब्लेस करेंगे। तो सबसे पहला सत्संग ये कि कुछ-कुछ वीडियो मतलब जो चैनल पे यूट्यूब पे शेयर होता था, वो मैं मेरे हस्बैंड अंकल जी के साथ शेयर करती थी, जो मेरे बच्चे से रिलेटेड या उसकी तरह की बीमारियों के रिलेटेड। क्योंकि जब मैं ऐसा देखने लगी कि जो बात मैं सोचती थी या जो मेरे प्रश्न रहते थे, उससे रिलेटेड जवाब या जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, उससे रिलेटेड जवाब मुझे यूट्यूब पे मिलते थे, तो मैं उसको सुनती थी। इस तरीके से सुनते-सुनते मैंने क्या किया, उनकी जो रिलेटेड चीज़ें लगती थी, मैं मेरे हस्बैंड को भेजती थी। लिमिटेड भेजती थी क्योंकि मुझे पता था ज़्यादा भेजूँगी तो वो सुनेंगे नहीं, तो लिमिटेड ही भेजती थी। तो मैं उनको भेजने लगी। इस तरीके से कुछ न कुछ तो उनको पता चलने लगा गुरुजी के बारे में, गुरुजी के सत्संग के बारे में। तो एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि कि मैंने कहा कि आप भी गुरुजी के मंत्र का उच्चारण कर लिया करो, जाप कर लिया करो। तो वो बोलते थे कि मैं रात को जब भी नींद खुलती है, तो जितनी बार भी हो गए 4-5, जब तक मुझे फिर से दोबारा नींद आ जाए, मैं गुरुजी के मंत्र का जाप करता रहता हूँ। तो एक दिन मुझे उन्होंने बताया कि आज क्या हुआ कि जो जैसे दीवाल होता है, दीवाल के ऊपर, वॉल के ऊपर ऐसा लगा कि जैसे प्रोजेक्टर से कुछ प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो वैसे गुरुजी की पूरी छवि, गुरुजी पूरे साक्षात गुरुजी की छवि उस पे प्रोजेक्ट हो रही थी। और तो मैंने कहा कि चलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया, उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। आपको मैं इतनी पूजा करती हूँ, उनके सत्संग सुनती हूँ और उनके साथ जुड़ना चाह रही हूँ, पर उन्होंने मुझे कभी भी ड्रीम में ऐसे ड्रीम दर्शन नहीं दिए, पर आपको उन्होंने ड्रीम में आके और साक्षात अपने दर्शन दिए, तो आप ब्लेस हो गए। ये उनका पहला सत्संग था। दूसरा सत्संग उनका ये था कि एक रात को उसके 7-8 दिनों बाद उन्होंने बताया, हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि 2 अप्रैल 2024 को मैं और मेरे हस्बैंड जी साथ ही थे, जब वो अंकल जी ने हमें ये बताया था गुरुजी के बारे में। तो ऐसे मई की बात है, मई में एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि मेरी रात में अचानक से नींद खुली और मतलब ऐसा लगा कि नींद खुली कि, और लेकिन उसके पहले सपने में मुझे बहुत ही जैसे मंदिर में खुशबू आती है चंदन की, और वैसी बहुत अचानक से खुशबू आने लगी 2 ढाई बजे रात में। और फिर मैं उठा और फिर मैंने गुरुजी के मंत्र का उच्चारण किया, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा कि चलो गुरुजी ने आज फिर आपको ब्लेस कर दिया, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने अपने स्मेल से अलग-अलग टाइप की कहते कि खुशबू होती है आपकी 7-8 टाइप की खुशबू। तो जैसे मुझे तो 2 बार गुलाबों की खुशबू आई थी, लेकिन उनको चंदन और एकदम मंदिर जैसी खुशबू आई और आपने उनको ब्लेस कर दिया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ गुरुजी के सामने ही बैठ के कर रही हूँ, गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठ के कर रही हूँ, तो जो गुरुजी मेरे से बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। और तीसरा सत्संग जो है वो भी मेरे अपने अंकल जी का ही है, वो मैं आज ज़रूर बताना चाहूँगी कि पिछले सैटरडे को मेरे हस्बैंड को यूरिन इन्फेक्शन हो गया मॉर्निंग में। उन्होंने बताया आके कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। फिर उन्होंने या फ्राइडे को मॉर्निंग में, फ्राइडे नाइट से वो दवा लेने लगे। सैटरडे को हल्की-हल्की फ़ीवर थी, संडे को उनका शरीर एकदम तप रहा था, बहुत ज़्यादा फ़ीवर थी और इतनी ज़्यादा कि उनको मंडे को भी छुट्टी लेनी पड़ी। वो भी सीनियर साइंटिस्ट हैं और लेकिन ऑफ़िस नहीं जा पाए और बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, इवन फ़ीवर 104 हो गया, पैरासिटामोल लेना पड़ा, उतरा। फिर क्या हुआ कि ट्यूसडे को भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो उन्होंने फिर छुट्टी ले ली। जब वो सैटरडे को आए थे तभी उन्होंने मतलब मेडिकल शॉप से
यूरिन इन्फेक्शन की जो यूरिन को अल्कलाइन करने के लिए अल्कासिस्ट ऐसा करके मेडिसिन लाए थे और एक और कोई टैबलेट लेके आए थे। वो ले रहे थे लेकिन आराम नहीं हो रहा था। फिर ट्यूसडे को मेरे को माइंड में आया कि मैंने कहा कि हो सकता था वो मेरी बात टाल भी देते, बहुत बार टाल देते हैं, बहुत बार मेरी बात सुनते नहीं है। पर ट्यूसडे को अचानक से मैंने उनको कहा कि आप कितनी छुट्टियाँ लेंगे? तो आप क्यों नहीं, ऐसे पास में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो आप एक बार वहाँ पे दिखाइए। क्योंकि डॉक्टर और मेडिकल शॉप वाले में डिफरेंस तो रहता ही है। तो उन्होंने कुछ भी हाँ ना नहीं कहा और वो सीधे हॉस्पिटल चले गए। ये भी मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी। शायद गुरुजी ने ही मुझे ऐसा कहना कहा था और उनके दिमाग में भी थॉट डाली, तो वो जल्दी चले गए। इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर वहाँ गए तो डॉक्टर ने कहा कि और सारी चीज़ें तो ठीक है। उन्होंने एंटीबायोटिक दिया और एंटीबायोटिक लेके पहली ही बार उन्होंने एंटीबायोटिक ली तो उनको आराम हो गया। फिर लेकिन एंटीबायोटिक की डोज़ पूरी की। अब जाके मतलब पूरे वीक में तक तो वो मतलब ठीक नहीं हुआ था। मतलब वेडनेसडे से, मतलब कल यानी ट्यूसडे, ये मैं जो आपको बता रही हूँ पिछले वीक की बात है। पूरे वीक भर उनको प्रॉब्लम रही, लेकिन इस ट्यूसडे से वो कह रहे हैं कि हाँ मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। और कल उन्होंने मुझे कहा कि आज मेरी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो गई है। अब मुझे यूरिन में ऐसा जलन नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो, पेन नहीं हो रहा। तो उसके अलावा उनके जो डिपार्टमेंट में हेड जो हैं, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट, उन्होंने भी कहा था कि कोई होम्योपैथिक दवा उनको बताई थी, 3 ड्रॉप्स करके कोई, तो वो भी वो ले रहे थे ऐसे करके। लेकिन फाइनली कल उनका पूरी प्रॉब्लम जलन और इन्फेक्शन ठीक हो गया। इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की जी की तरफ से, सबकी तरफ से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसके साथ-साथ मैं पर ये भी गुरुजी से अरदास करना चाहूँगी कि वो बोल रहे हैं कि अभी वीकनेस है उनके बॉडी में, चूँकि 10 दिन तक वो पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट के प्रॉब्लम से मतलब जूझ रहे थे। तो इसलिए उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो गुरुजी उनकी वीकनेस जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, इसकी मैं अरदास करूँगी। उनके अंग संग रहें, मेरे बच्चों के अंग संग रहें, मेरे अंग संग रहें, मेरे सारे परिवार वालों को ब्लेस करें। गुरुजी ने जो दिया और जो नहीं दिया सबके लिए शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। गुरुजी आपने मुझे बहुत ही धैर्यवान बना दिया है। मैं अब मतलब सब्र करने लगी हूँ। तो उसका भी शुक्राना। और उसके बाद इस तरीके से मैं अपने शुक्राना सत्संग का समापन करना चाहूँगी। उसके पहले मैं मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। संगत जी, अगर इस सत्संग में कोई बात आपको ठीक ना लगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझसे कोई गलती तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना।